Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Urban Administration. You have already learnt about rural administration. गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं. There is a vast difference between a village and a city. A city spreads over large areas, so it is much larger than a village. गांव और शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. गांव छोटे से होते हैं, शहर जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं. It is more densely populated than the rural areas. दूसरा, यहाँ पर population भी बहुत ज़्यादा होती है. There are crowded markets, numerous cars and crowded buses, water and electricity facilities, traffic control and hospitals in a city. Who is responsible for running all this? और शहरों में इतनी सारी चीज़ें जैसे बस है या बहुत सारी कार के लिए ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए, क्राउडेड मार्केट्स हैं, इनको कंट्रोल के लिए, इनकी रनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Who does all this for us in a city? कौन करता है हमारे लिए ये? Who are the people that do all the work and planning? To know about this, we have to read this chapter. Okay? कौन करता है शहरों में ये काम? ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. It was a Sunday morning. यहाँ एक स्टोरी दिखाई गई है. It was a Sunday morning. Savita and her friend Arun, Rahim and Priya decided to play a game of cricket in the street. कुछ फ्रेंड्स हैं, ये लोग अपनी गली में, अपनी स्ट्रीट में क्रिकेट खेलने की सोचते हैं. There was small space around. आसपास एक छोटी सी जगह होती है. अरुण was batting very well. अरुण बैटिंग कर रहा था. Next over was bowled by Rahim and he had bowled a good over and he managed to get Arun out. Then Priya came for batting. उसके बाद प्रिया आती है बैटिंग के लिए. उसके आउट होने के बाद कविता bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. और वो क्या सोचती है, शायद ये कैच आउट हो जाएगी. Rather Priya hit the ball so hard and so high that street light broke. उसके बजाय रिया क्या करती है, प्रिया इतनी जोर से बॉल को हिट करती है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है. प्रिया शाउट करती है, ओ माई गॉड what have I done? ये मैंने क्या कर दिया. Arun at that moment reminded everyone of the agreement between the players that one who breaks the street light will have to pay for it. अब अरुण जो उनका एक फ्रेंड है वो याद दिलाता है, खेलने से पहले ही हमारी बात हुई थी कि जो जिस चीज़ को तोड़ेगा, स्ट्रीट लाइट जो तोड़ेगा उसी के लिए वही पे करेगा. Last week they had broken Mr. Srivastav window and had spent their pocket money to have it replaced. क्योंकि लास्ट वीक जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो किसी की विंडो उनसे टूट गई थी और उस खिड़की की रिपेयर के लिए उसने अपनी सारी पॉकेट मनी, सब बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी खर्च कर दी थी. But in this case nobody knew to whom to pay or who owned the street light. लेकिन अब किसी को नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है तो उसके लिए उसे किसको पे करना है. Who changes them? कौन उसको स्ट्रीट लाइट को चेंज करेगा. Priya goes to her home and asks her mother about this. Her mother said that she did not know more about it, but it was the municipal corporation of the city that took care of the replacing light. उसकी मदर क्या कहती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे शहर में जो ये रिप्लेसिंग लाइट का काम करती है. She told Priya to meet Firoz uncle as he works in municipal corporation. All children went to meet Firoz uncle and told him what had happened suddenly. Mr. Firoz क्या कहते हैं, municipal corporation is a huge organization that look after the street lights, garbage collection, water supply and cleaning of the city. कि शहर में ये सारे काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखती है. कौन बताता है उन्हें, मिस्टर फिरोज who was working in municipal corporation. Savita told him that she had seen some days back the big posters that the municipal corporation had put all over the city to inform people about malaria. सविता को याद आता है कि हाँ कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए. जो पोस्टर्स थे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही लगाए थे. मिस्टर फिरोज वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय सविता ऑब्जर्वेशन. ही टोल्ड हर दैट शी वॉज राइट.
और मिस्टर फिरोज को बहुत अच्छा लगता है ये सुन के और वो क्या कहते हैं, यस बिल्कुल ठीक कह रही हो। He told them that municipal corporation was also responsible for checking epidemics in the city। और वो क्या बताते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, शहर में कोई बीमारी तो नहीं फैल गई, अगर कोई बीमारी फैल जाती है या उसको चेक करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। The municipal corporation runs many schools, hospitals and dispensaries and builds and maintains gardens. He said, our city Delhi is a big city, so it is called a municipal corporation or Nagar Nigam। हमारा शहर जो है जैसे कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, इसीलिए यहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम कहते हैं। वाइल इन स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका। और जो छोटे टाउन होते हैं उसमें क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पालिका। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब कौन कौन ऑफिसर्स इसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। अरुण वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु डिसाइड द साइट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्क एंड अ कम्युनिटी हॉल। ही आस्क्ड फिरोज अंकल अबाउट इट। अब अरुण पूछता है कि अच्छा कहाँ पार्क बनाना है, कहाँ कम्युनिटी हॉल बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है। फिरोज टोल्ड हिम, नो अरुण, आई एम नॉट इन दैट डिपार्टमेंट दैट टेक्स दीज डिसीजंस। कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, आई एम वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स। कि मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पर या सैलरी स्लिप्स पर ही काम करता हूँ। He also told them that municipal corporations has to take decisions like developing a city, providing essential services and keeping it clean. The city is divided into smaller units called wards and wards councillors are elected by people. अब city इतनी बड़ी होती है, उसको maintain करने के लिए city को किस में divide कर दिया गया है, wards में divide कर दिया गया है और ward काउंसलर्स इलेक्ट कर दिए जाते हैं वहाँ के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। All the important decisions are taken by a group of councillors. They formed committees to decide and debate issues. एक कमेटी बनाते हैं वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। Take example of a drain that is choked and needs cleaning or a crowded marketplace need to have its garbage cleared more regularly or even an old bus stand that needs to be repaired। जैसे कि कोई भी इश्यू है, लाइक कोई ओल्ड बस स्टैंड है उसको रिपेयर करना है, कोई मार्केट प्लेस है वहाँ से गार्बेज हटवाना है, या कोई चौक ड्रेन है उसको क्लीन कराना है। ये सारे मुद्दे जो हैं ग्रुप ऑफ काउंसलर्स कमेटी जो है वो डिसाइड करते हैं। दिस कमेटी टेक्स डिसीजन ऑन द वर्क टू बी डन। तो ये कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि आगे क्या करना है। ओके, यहाँ आपको एक ऑफिस दिखाया गया है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक एग्जाम्पल दिया गया है किस टाइप के ऑफिसेज होते हैं। If people of a particular ward face any problem, they can contact their ward councillor to help them because he has been chosen by the people। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं, क्योंकि वार्ड काउंसलर को कौन चूज करते हैं, हम लोग ही चूज करते हैं बाय वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स आर अपरूटेड इन अ वायलेंट स्टॉर्म। मान लो कोई तूफान में कोई इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो उखड़ गए हैं या पेड़ हैं वो गिर गए हैं, तो किसके पास जाएंगे, वो अपने लोकल काउंसलर के पास जाएंगे, ताकि उनके वजह से जो बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करें। द पॉलिसी decisions and matters are decided by the councillors committee and the councillors, but these decisions are implemented by the administrative staff and the commissioner. The commissioner and his staff are appointed by the state government. While councillors are elected, the commissioner is the head of many departments like education, water, sanitation, health, housing, engineering and others. Arun asked Mr. Firoz, but I am interested in knowing how does a municipal corporation spend its money? अब अरुण क्या कहते हैं, अब मुझे ये जानना है कि इतना सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है और वो इस मनी को कैसे स्पेंड करती है। नाउ ये टर्म आपकी क्लियर होगी बजट में। Mr. Firoz said that all of the ward councillors meet to make a budget and the money is spent according to it। कि जो पूरी कमेटी है, वार्ड काउंसलर्स हैं, वो सारे बैठ के एक बजट बनाते हैं और उसी अकॉर्डिंग मनी को स्पेंड करते हैं।
Every ward councillor put their demand before the entire council, और सब लोग सारे काउंसलर अपनी डिमांड बताते हैं. Then those decisions are implemented by the commissioner and his administrative staff. Mr. Feroz was very pleased to talk with children because all of the children were listening aptly. और मिस्टर फिरोज को ये बातें बताने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे बच्चे उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे. Now sources of funds. इतनी सारी सर्विसेज के लिए फंड कहाँ से आता है? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स एंड ऑफिसेज. शॉप, ऑफिस और घरों पे जो टैक्स लगता है वो इकट्ठा करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. एंड स्क्वेंजिंग टैक्स फॉर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स. कोई भी स्ट्रीट है, कोई भी ड्रेन है, उसको क्लीन करने के लिए टैक्स लेती हैं. एंड द एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज ऑन सिनेमा टिकट्स. जो हम सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते हैं वहाँ पर टिकट के साथ कुछ टैक्स भी लगता है, उससे टैक्स होता है. टोल टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी चार्ज ऑन गुड्स कमिंग इनटू द सिटी फॉर सेल. उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड लाइसेंस फीस चार्ज फ्रॉम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स. एंड रेंटल इनकम फ्रॉम ऑफिसेज एंड शॉप्स ओन्ड बाय द कॉरपोरेशन. Now, Afzal asked curiously to Mr. Feroz, the city is so large that it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? अफजल कहता है अब इतनी बड़ी सिटी होती है, क्या बहुत सारे लोग होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए? He answered, yes, there are several departments and work is divided into these departments. कि हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम दिया जाता है. There are the garbage collection department, water department, a department to look after gardens and another to look after roads. Mr. Feroz ordered his servant to bring cold drink for the children as they had been sitting with him for quite some time. अब मिस्टर फिरोज अपने सर्वेंट से कहता है कुछ कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए थे तो शायद वो थक गए होंगे और हंग्री भी होंगे, और कुछ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स उनको सर्व की जाती है. Priya asked another question. Feroz uncle, where does the municipal corporation put the garbage after it collects from homes and public places? कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो इतना सारा गार्बेज होम और ऑफिसेज या पब्लिक प्लेसेस से इकट्ठा करती हैं वो आगे उसका क्या करती हैं? द अदर्स वर स्टिल एंजॉयिंग देयर स्नैक्स. मिस्टर फिरोज सेड, यू हैव आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन प्रिया. अब मिस्टर फिरोज कहते हैं प्रिया तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. अर्लियर गार्बेज वॉज डम्प्ड इन अ डीप पिट्स आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. पहले क्या किया जाता था कि जो गार्बेज है उसको सिटी के बाहर डंप किया जाता था. बट नाउ इट इज़ ईदर इंसिनरेटेड फेड इनटू बायोगैस प्लांट सप्लायर टू सम एरियाज. अब की क्या किया जाता है? बायोगैस प्लांट लगा दी जाती हैं. ही फर्दर सेड दैट द म्यूनिसिपल स्टाफ कैन नॉट डील विद इट सिंगल हैंडेड. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. वो क्या कहते हैं कि म्यूनिसिपल स्टाफ अकेले ये कुछ नहीं कर पाते, हमारी भी ड्यूटी बनती है. वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर. हमें भी गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. यू मस्ट हैव सीन गार्बेज लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्ट्रीट. If it continued to be thrown in such a way, it would attract all kind of insects, flies and animals like dogs, rats and others. Such garbage also gives out a very foul smell, polluting the air and water around area. देखा होगा तुमने कि गलियों में इधर उधर कचरा जो है, गार्बेज जो है वो फेंक दिया जाता है. अब इस गार्बेज से क्या होता है, बहुत सारे मच्छर मक्खी वहाँ आ जाते हैं, डॉग घूमते रहते हैं, रैट्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है. हमारी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है, हमारे आसपास जो पानी है वो गंदा हो जाता है. दिस मेक्स पीपल इल. इससे क्या हो जाएंगे? हम लोग बीमार हो जाएंगे. He said that at a time things become so bad that the parents had prohibited their children playing cricket in the street because they would get sick after inhaling the polluted air for a long time. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर क्रिकेट भी नहीं खेलने देंगे क्योंकि वो ऐसी हवा में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे. More to know. The larger the house, the more the tax. जितना बड़ा घर होता है उतना ही हाउस टैक्स पे करना होता है. Now next is a community protest.
Mr. Feroz continues, an individual cannot make the government act, but the community can do wonders. The women were very unhappy about the situations as several children in the colony had fallen ill. कि अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक कम्युनिटी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कि एक सोसाइटी की विमेन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। द रेजिडेंट्स थॉट व्हाट दे शुड डू। अब वो रहने वाले सोचते हैं वहाँ के कि हमें क्या करना चाहिए। एक विमला जो है सजेशन देती है कि दे शुड गो टू द वार्ड काउंसिलर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट सिंस दे हैव इलेक्टेड हिम। She gathered a small group of women and went to his office. They began shouting slogans in front of his office. He came out and asked them about shouting. अब वो क्या करते हैं, एक काउंसलर के बाहर, वार्ड काउंसलर के बाहर जाते हैं, घर के बाहर, और नारे लगाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, ऑफिस से बाहर आते हैं और पूछता है कि लोगों को क्यों शाउट कर रहे हो। विमला डिस्क्राइब्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ लोकेलिटी। विमला अब पूरा सिनेरियो बताती है कि उनकी कॉलोनी में क्या हो रहा है। ही प्रोमिस टू गो विद देम टू मीट म्यूनसिपल कमिश्नर। और वो क्या कहते हैं वार्ड काउंसलर कि वो उनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलने चलेंगे। He asked Vimla to get a petition signed by all the adult member living in the area. और विमला को क्या कहते हैं कि एक petition साइन कराओ, जितने भी adult members हैं आपके एरिया में रहते हैं उन सबसे एक petition साइन कराओ। The petition should state that the garbage is not being collected regularly. He also suggested to pursue local sanitation engineer to go with them. और उनके साथ एक local sanitation engineer को भेजते हैं। That might be a good idea. The engineer could speak with the municipal commissioner about the situation. The children started going from door to door, making sure that as many families as possible sign the petition. और बच्चे सब मिलके वो petition को sign कराने के लिए door to door जाते हैं। The next day, a huge crowd consisting of a large group of women with the ward councillor went to sanitation office. फिर सब लोग इकट्ठे होकर वार्ड काउंसलर के साथ सैनिटेशन ऑफिस में जाते हैं। They met the commissioner and told him about the bad condition of their area. He began his answer with the excuses that the corporation had shortage of trucks. Vimla was vigilant enough to catch him fast on this point. She replied, "Sir, you have enough truck to collect garbage from the rich localities." अब वो क्या कहते हैं, क्या सैनिटेशन ऑफिस वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ ट्रक है। इस पे विमला क्या कहती है कि जो रिच लोकेलिटीज़ है वहाँ से तो गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, क्या हमारे लिए ही शॉर्टेज ऑफ ट्रक्स है। नाउ अफजल गिब्स that must have left him lost for words. Mr. Feroz said, yes, he said that he would take care of it immediately, and Vimla threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation office. So, did the street get clean? asked Savita. It was not until another larger and noisy protest was made again by the women of this area. Vimla क्या कहती है, अगर ये 2 दिन में नहीं हुआ तो वो और बड़े ग्रुप को लेकर आएगी। The sanitation services became slightly better and continued on a more regular basis. उसके बाद उसकी इस धमकी से sanitation services उस एरिया में अच्छी हो जाती हैं और regular basis पर हो जाती हैं। They continued vigil of some active women members under the leadership of Vimla helped to raise awareness among the residents. Priya said, all this sounds just like a Bollywood thriller with a happy ending. She tried to put herself in the lead role of Vimla. अब वो क्या कहती है, वाओ ये तो एक मूवी की तरह हो गया जिसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। वो क्या सोच रही थी, वो सोचती है मैं एक विमला का रोल कर रही हूँ। ओके, तो खुश होके इस तरीके से प्रिटेंड करती है। नाउ न्यू प्राइवेट इनिशिएटिव। Children were told by Mr. Feroz about how times have changed now. In order to save money across the country, the commissioners of several municipalities had hired private contractors to collect and प्रोसेस द गार्बेज। अब जो है टाइम चेंज हो गया है, पैसा बचाने के लिए जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हायर किया जाने लगा है। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने लगी है, जैसे कि गार्बेज के प्रोसेस के लिए। Subcontracting is the hiring of private contractors. This means that the same work was earlier done by the government employee, लेकिन अब वो काम कौन कर रही हैं, private companies. Nowadays, garbage collection is a difficult and dangerous job because dangerous waste like hospitals and industrial waste
get mixed. This pose great डेंजर टू दीज वर्कर. अब जो है गार्बेज कलेक्शन का काम ये एक डेंजरस वर्क भी हो गया है, क्योंकि हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. Therefore, modern methods of collecting garbage have to be used, otherwise the workers will expose to dangerous disease or injure themselves while doing this work. अब जो है कुछ मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्निक इंट्रोड्यूस करनी होंगी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, नहीं तो जो ये वर्कर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. More to know, the slum dwellers do not pay taxes to the municipal corporation. जो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता. The story of Vimla, they were also full of praise of self-service of Vimla. The children got up and thanked Mr. Firoz for answering their questions and offering cold drinks and snacks and walked back down the street together. इस तरीके से पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम समझ के मिस्टर फिरोज से बच्चे उनको थैंक यू कहते हैं हर एक चीज़ के लिए कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, उन्हें कोल्ड ड्रिंक और स्नैक भी ऑफर किए और अपना टाइम भी दिया. Now here is a story, here is a scene of a Surat plague in 1994. सूरत एक डर्टीएस्ट सिटी थी इन 1994. द प्रॉब्लम बिगेन विद डर्ट एंड रोटन गार्बेज. और ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हुई? लोग क्या करते थे कि गार्बेज को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते थे और ऑल्सो होटल्स एंड रेस्टोरेंट डम्प दे गार्बेज इन द सेम वे. इसी तरीके से घर के जो लोग हैं वो भी अपना गार्बेज को स्ट्रीट और ड्रेन में फेंक देते थे और होटल और रेस्टोरेंट वाले भी अपने गार्बेज को ऐसे ही फेंक देते थे खुले में. It made very difficult for sweeper to collect and transfer the garbage into selected dump. और स्वीपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उस गार्बेज कलेक्शन के लिए. The municipal corporation did not collect the garbage regularly. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रेगुलरली गार्बेज को इकट्ठा नहीं करती थी. इससे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जो है पूल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर फिल्ड द एलीज, कि हर जगह गंदे पानी के जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया था. द प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर. और इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया था कि उस टाइम कौन सी बीमारी फैल गई थी? प्लेग बीमारी हो गई थी. एंड द प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर. दिस वॉज अ बैड पीरियड फॉर द पीपल ऑफ सूरत. Several people lost their lives and nearly 30 lakh deserted the town itself to be away from the deadly disease. और बहुत सारे लोग सूरत को ही छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे ताकि वो अपनी जान बचा सके और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी. The municipal council completely cleaned up the city in the scares of plague. Now Surat becomes the second cleanliness सिटी आफ्टर चंडीगढ़. और उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर ध्यान दिया और सूरत को क्लीन किया, वहाँ से प्लेग को हटाया और अब जो है सूरत सबसे नंबर 2 पर है. सबसे पहले नंबर पर है चंडीगढ़ जो साफ सिटीज़ में काउंट होती है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, और सेकंड नंबर पर है सूरत. तो इसी तरीके से हमारी जो स्टेट है वो इतनी डर्टी ना हो जाए कि वहाँ पर एपिडेमिक्स फैल जाएं, लोग बीमार हो जाएं. हमें भी क्या करना चाहिए? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और गार्बेज जो है वो सही जगह पर डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए. ओके, नाउ मोर पॉइंट्स टू लर्न. Municipal corporation takes care of the street lights, garbage collection and water supply. The commissioner and his staff are appointed by the state government. The municipal corporation gets funds from taxes, water and electricity charges, rental income and toll tax. Garbage collection today is also a difficult and dangerous job. An elected civic body of a big city that runs the civic amenities. Street cricket is really bad, risky and dangerous. The municipal corporation looks after big towns. They are also known as Mahanagar Nigam. The members of the committee elect a mayor.
and the state government can dissolve any municipality or a corporation if its working is not satisfactory. Some seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. Any person who wants to contest election for membership should not be less than 25 years of age. Municipal corporation earns only 20 to 30% of the money from property taxes. And contract laborers are paid less money and their jobs are temporary. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.